I tell people to make AI your slave. The way AI is growing, मैं एक हफ्ते में relevant हो सकता हूँ. Founder of Morango Films and 62nd International Film Festival. What's been the most unexpected thing you created with the AI? AI is your reflection. AI is not magic. Hi everyone and welcome to another episode of Just AI Talks where we explore about AI tools, insights and what's happening in the world of AI. And today we have a very special guest with us. One word for him, he's a storyteller. Welcome to the show, Mr. Abrar. How are you? बिल्कुल ठीक. आप बताएं कैसे? All good, all good. You have had such a dynamic journey from traditional filmmaking, then NFTs, and then now AI. So, how would you describe this evolution in your creative career? So it's not about what I am doing. It's about how I want to see future. And back in 2009-10 when I was working for Sama TV, I started 62nd Film Festival का concept. और जब वो हम कर रहे थे तो हम मोबाइल फिल्म मेकिंग सिखाते थे. And that's how the journey begins. So उस वक्त मुझे नहीं पता था कि रील्स का कभी कोई सीज़न आएगा. तो that's how 62nd started. Yeah. और वो उस वक्त भी कोई मोबाइल फिल्म मेकिंग की बात कर नहीं रहा था 2009-2010 में. Whenever I tell people कि short term content is the future, nobody was listening. The way information is spreading, the way AI is growing, मैं एक हफ्ते में relevant हो सकता हूँ. So मैंने अपने ऑफिस में कितनी सारी चीज़ें automate कर दी हैं AI पे. So basic crux of your question is, if you're not looking ahead, you will lose everything that you have. There is always a starting point. So, what inspired you to start with the generative tools and generative AI images I got stuck in Chicago for a year. in COVID? That too in COVID. यानी कि मैं गया शिकागो, Yeah. क्लाइंट से मीटिंग थी. I feel like. मीटिंग में पहुँचे और जिस दिन मैं पहुँचा उसके अगले दिन शिकागो बंद हो गया और वापसी की फ़्लाइटें बंद हो गई. What happened during that time, हम वेबसाइट बना रहे थे उस क्लाइंट की और उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो AI बेस्ड थी, जो कि हम पाकिस्तान में रह के उसको AI का वर्ड यूज़ नहीं करते. तो मशीन लर्निंग was there, everything was there, but how to use AI, that was the first time I get introduced to that whole expression, how to use AI for business. और वहाँ से चीज़ें शुरू हुई एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग AI. यानी कि मुझे डाटा समझ में आना शुरू हुआ. मुझे ये पता चला कि इतना डाटा अगर होगा तो मैं इस डाटा को कंज्यूम करके ये आउटपुट निकाल सकता हूँ, या इस डाटा को कंज्यूम करके मैं इस तरह की 6 डिफरेंट आउटपुट्स निकाल सकता हूँ. तो बस वो वहाँ से दैट वाज द बिगिनिंग. और उसके बाद फिर देयर इज़ नो स्टॉपिंग. आई हैव बीन यूजिंग AI सिंस. सो लाइक मैंने पहली बार ChatGPT 2023 या 2022 के एंड में यूज़ किया होगा. I remember you introduced me to ChatGPT. और उसके बाद जैस्पर एक था बीच में. Jasper. अब वो मुझे बहुत मुश्किल लगता था. तो मैं शुरू में मेरी फ्रस्ट्रेशन भी ये थी कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि AI है क्या. बट आई थिंक ChatGPT हैज़ मेड इट possible for many people who wants to use AI. It made it easy for them. Right now if I have to do something, I'll ask ChatGPT कि मुझको इस तरह की कोई चीज़ करनी है, तो ChatGPT पूरा एक वर्क फ्लो बता देता है, गो स्टेप बाय स्टेप एंड गेट थिंग्स डन. लास्ट ईयर आई हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग बेटर इमेजेस. फिर वो वीडियोस बेहतर होनी शुरू हो गई. देन आई सेड कि ये अब दिखाता हूँ लोगों को काम. तो मैंने बहुत टाइम लिया पहला विजुअल फेसबुक पे शेयर करते हुए. सो रिसेंटली मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी शुरू कर दी हैं बिकॉज आई एग्जैक्टली नो. मेरा हाथ साफ हो गया है, मुझे पता है कि चीज़ें कैसे निकलती हैं. एंड आई गेट क्वेरीज फ्रॉम वेरियस पीपल, आई गेट comments from friends, I get comments from the industry, I get comments from different countries as well on my work, and that is very interesting because now the community is growing. हम जो पहले इंडस्ट्री में थे वो बड़ी लिमिटेड टू पाकिस्तान थी. सो AI has no barrier. You could work with anybody on planet Earth. आप किसी भी मुल्क के किसी भी इंसान के साथ बैठ के काम कर सकते हैं. That is the freedom you get through AI. And I think in AI art it's very important because सोचना आपको है, prompt जो भी है वो आपको ही देना है. But still I feel like mostly people are focusing on the tech side only. So इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है. AI ये कर रहा है कि जैसे आप हैं वो वैसा बिहेव करेगी. आपको नहीं पता कि कैमरा के कितने फॉर्मेट हैं, तो AI आप जिस AI पे बना रहे हैं उसको भी नहीं पता कि कैमरा के कितने फॉर्मेट हैं. AI को नॉलेज पूरी है, आपने इनेबल करनी है. तो अपनी नॉलेज जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो AI किसी काम की नहीं है. AI वैसे ही उतनी ही लिमिट रखती है जितनी आपकी है.
AI is your reflection. AI is not magic. AI is not something that could produce magic. अगर आपको नहीं आता सोचना तो AI को कुछ करना नहीं आता. I've seen some AI generated art recently जो आपने प्रोड्यूस किया है. सो अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ आपके पहले के ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग से व्हेन यू आर डायरेक्टर एंड डूइंग थिंग्स एंड अब जो आपने प्रोड्यूस किया, इट्स काइंड ऑफ अ सेम कमर्शियल यू आर डूइंग बिफोर बट नाउ विद द AI. सो व्हाट्स द डिफरेंस लाइक? डिफरेंस कुछ नहीं है. आई एम प्लेइंग विद AI राइट नाउ, बट मेरी एपेटाइट ऑफ कंज्यूमिंग AI इज़ वेरी हाई बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. यानी कि मैं अब तस्वीरें भी नहीं खींच रहा एंड मैं कैमरा भी यूज़ नहीं कर रहा. नाउ यू आर जनरेटिंग. अब सिर्फ जनरेशन चल रही है. मैं सोच रहा हूँ और बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ और बना रहा हूँ. आई डोंट नीड टू गो एंड टेल 18 पीपल व्हाट टू डू. मुझे फॉली कराने में, वो बैकग्राउंड स्कोर कराने में जितना टाइम लगता था वो मैं अब विद इन 15 सेकेंड्स जो है बहुत सारी चीज़ों को फिक्स कर लेता हूँ. जस्ट बिकॉज आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई वांट. तो मेरे लिए AI यूज़ करना आसान है. Can you walk us through a project where AI played a key role in generating the visuals and storytelling? बहुत सारे हैं. अब मुझे ये नहीं पता कि किस तरह Maybe के. let's talk about the recent you did for Bombay Chapati. अच्छा वो आई हैव बीन वर्किंग विद बॉम्बे चौपाटी ऑन एंड ऑफ. तो मैंने ऐसे ही आई जस्ट बाउंस ऑफ द आइडिया. दे लाइक द आइडिया. आई क्रिएटेड समथिंग. इट वाज अ ट्रेंडिंग विजुअल. AI पे बहुत सारे लोग वो बना रहे होते हैं कि मिनिएचर कैरेक्टर्स बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं. सो इट वाज नॉट समथिंग के आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया नहीं है. दिस इज़ अ ट्रेंडिंग वीडियो. सो जस्ट टू फॉलो अ ट्रेंड आई वाज मेकिंग समथिंग एंड बिटवीन आई रियलाइज़ कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये तो बॉम्बे चौपाटी के बिल्कुल करीब करीब है. सो दे ओनली आस्क्ड मी कि क्या पीछे दुबई की स्काईलाइन आ सकती है. मैंने कहा हाँ. सो दुबई की स्काईलाइन के साथ बना के एक्सपोर्ट करके दे दिया. अगेन इट टुक मी 4 hours टू प्रोड्यूस द एंटायर एड. Yeah, that's good. What's been the most unexpected thing you created with the AI? मैंने it भी helped you to रिसेंटली एक create? वीडियो अपलोड की है स्नेक्स. Yeah, इट्स अ I've seen that. जंगल सीरीज दैट आई Yeah. हैव क्रिएटेड. अभी उसमें मैं हर तरह की वो एनिमल्स की इमेज जनरेट कर रहा हूँ विद इन दी सराउंडिंग्स ऑफ जंगल. तो वो मुझे लगता है वो अनएक्सपेक्टेड था. वो मैंने लिखा कुछ था, मैंने उसको बिट जर्नी पे जाके वेरी क्रिएटिव पे किया और स्ट्रॉन्ग कर दिया. तो उसने उस इमेज के साथ 3 अलग तरह के इमेज बनाए. उसमें एक स्नेक का बना विच आई रियली लाइक्ड. तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया. दैट्स हाउ आई क्रिएटेड समथिंग. लाइक इट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल बट आई लव द इमेज, द काइंड ऑफ डिटेल वाज कमिंग इन. तो मैंने फिर उसको आई टेक अप द टास्क एंड आई स्टार्टेड. Like you were generating something related to the jungle or like animals or like completely different? वो बिल्कुल ही पता नहीं क्या, वो उसका एक ऑप्शन है. अगर आप उसको आज़ाद छोड़ दें, यानी कि गिव हिम 100% क्रिएटिव फ्रीडम एंड आस्क हिम टू क्रिएट अ विजुअल और बेसिक से कोई 3-4 वर्ड लिखे तो वो अलग अलग डायमेंशन में चला जाता. सो it was not me who decided to do this. It was Midjourney who opted to generate something which I liked and then I take up as a task कि अच्छा अब ये बनाते हैं, ये अच्छा लग रहा है. No one else is doing something of this sort. I should. Oh, I would really love to see that AI jungle series. हाँ, वो बड़ा मज़ेदार बन रहा है. Do you see AI as a co-creator or just a tool to, you know, enhance your work or to speed up your work? How you draw the line? There is no line. यानी कि AI को आप एज आई सेड अगर सोचना आता है तो AI काम कर सकती है आपके लिए, और अगर सोचना नहीं आता तो आप AI यूज़ कर रहे होंगे सिर्फ. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ विच इज़ वेरी हार्श. आई टेल पीपल टू मेक AI योर स्लेव. और उसके लिए आपको पता होना चाहिए वो काम क्या लेना है. Like you have to train the AI, not AI train you. हाँ, यानी कि आप बहुत सारे लोग जो भी ChatGPT जैसे यूज़ करते हैं वो इस तरह होता है कि they are unable to do something, that's why they are using AI. It's the other way around. You know how to do everything and then you will use AI, then it will be following you. यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन पे उसकी नॉलेज बिल्ड हो रही है, बजाय इसके कि आप उसकी एबिलिटी को यूज़ करके. ये बिल्कुल वही है कि आपने एक एम्प्लॉय रख लिया है और आप उससे काम करवा रहे हैं लेकिन ख़ुद नहीं आता आपको काम करना. लेकिन आपको काम करना आता है, अब आपने किसी को रखा है तो आप उसको भी ग्रो कर रहे हैं और ख़ुद भी ग्रो हो रहे हैं. सो AI इज़ एग्जैक्टली द सेम वे. अगर आप AI को AI has to be treated like a slave. How do you balance the originality and AI generated content in storytelling? It's not about originality, it's about ethics. You should be ethically right. You should not do anything that is going to
disturb someone. You should not use a visual without someone's consent. If you're using a visual, please get consent. And that's the only boundary AI has. जिस तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री में जब पायरेसी शुरू हुई थी तो रूल्स कोई नहीं थे, वो रूल्स आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, लॉ आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होता है. फोटोग्राफी के साथ भी यही हुआ, फिल्म मेकिंग के साथ भी यही हुआ. सो आई थिंक AI इज़ वेरी न्यू and the amount, the pace it has, like the growth speed of AI is very different than many other industries. So it will take some time for people to write some boundaries for AI. लेकिन जब तक boundaries नहीं है तो it's on you to be ethical with the tool that you have. You should not use it like पाकिस्तान में AI तो अभी मशहूर हुआ है, लेकिन फेक न्यूज़ तो बहुत पहले से थी ना. तो लोग क्रिएट ही करते हैं, येलो जर्नलिज्म, यानी कि आपकी अजीब सी कोई तस्वीर पहले वो किसी की लगा के कुछ भी बना देते थे. तो ये तो पहले भी हो रहा था. तो लोग गलत है, AI गलत नहीं है. AI कुछ गलत नहीं कर रही, AI को यूज़ करने वाला गलत है. ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक गन आपने ख़रीदी है फॉर सेल्फ डिफेंस और एक गन आपने किसी ने ली हुई है डाका डालने के लिए. तो आप डाकू बनना चाह रहे हैं या आप सेल्फ डिफेंस में रहना चाहते हैं या आप गन लेना ही नहीं चाहते. There has been a lot of debate on AI replacing creatives. What do you think? कितना पोटेंशियल है इसमें? नहीं कर सकते रिप्लेस क्रिएटिव को. सोचने के काम को भी रिप्लेस नहीं कर सकता. क्राफ्ट्समैन रिप्लेस हो जाएंगे. पीपल हु आर गिविंग यू टफ टाइम क्रिएटिंग अ डिज़ाइन ऑफ अ सिंपल विजिटिंग कार्ड, दे विल बी रिप्लेस्ड. पीपल हु थिंक दे आर द बेटर प्रैक्टिशनर ऑफ डिज़ाइन, यानी कि जो फोटोशॉप और ये सब यूज़ करते हैं, दे विल बी रिप्लेस्ड. आधे से ज़्यादा लोग तो हो ही चुके हैं रिप्लेस, कैनवा ने कर दिए हैं, बाकी AI कर देगा. फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रीफ दे दूं कि मुझे एक ब्रोशर चाहिए, ये बना दो, वो उस टीम को लगेंगे 4 दिन, 1 घंटे में हो जाएगा काम. ब्रीफ मैंने ही दिया, कंटेंट मैं लिखवा लूँगा किसी से भी, क्लॉड पे जाऊँगा, चैट GPT से लिखवाऊँगा, फिर क्लॉड पे डालूंगा, फिर ग्रामरली से चेक कराऊँगा, फिर क्लॉड पे जाऊँगा. आई विल डू बैक एंड फोर्थ बिटवीन 2 प्लेटफॉर्म. I'll get the exact content for the brochure. I'll design some images. I will produce some images through AI, and I will make it much quicker. Yeah. Why should I waste 4 days in producing something? So creative आदमी का जो मसला था वो नहीं है. हमें जो क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एक्चुअली क्रिएटिव हैं, उनको कुछ नहीं कर सकता AI. एक्चुअली उनके लिए तो ब्लेसिंग है AI. Are you using any particular AI apps for like image generation, video creation, and the whole process of filmmaking? I consume 2 or 3 platforms per day. Okay. The speed of platforms coming in is very, very different than what it was in 2024. Since 2025, January till yet, there is a massive updates that are happening across platforms. मैं Mid Journey बहुत ज़्यादा extensive use करता हूँ. मैं क्लिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ आजकल. उससे पहले क्लिंग से पहले मैं रनवे यूज़ करता था. सो रनवे का वो रिज़ल्ट नहीं है जो क्लिंग का रिज़ल्ट. क्लिंग इज़ मच बेटर फॉर वीडियो क्रिएशन, लाइक इमेज टू वीडियो क्रिएशन में दोनों बेहतर हैं, लेकिन जो द फ्रीडम क्लिंग हैज़, यानी क्लिंग आपको एक्स्ट्रा ऑफर करता है, जो आप नहीं लिख रहे वो भी ऑफर कर देता है समटाइम्स, विच इज़ ग्रेट. समटाइम्स दैट मिस्टेक गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट. बाकी I use 11 Labs for audio dubbings and all, and I use Suno.ai for background score. That's good. That's really good. I also generate sound effects through AI. सिर्फ edit CapCut पे करता हूँ जाके. And for me, creating a 30-second ad, if the concept is clear, if the board is locked, I can create that in 30 minutes, the entire visuals, and I could produce entire ad in 3 hours. Nice, that's great. I am making a film, so there is a steps of creating a film. So if I have to write script, then images, storytelling, then video, and इसको और आसान करते हैं. स्क्रिप्ट लिखने से पहले आइडिया क्या है, वो तो आपका है. अगर आइडिया भी आपने चैट GPT से ले लिया तो आप ना बनाएं फिल्म, बेकार है. फिर वो आप कंट्रोल में ही नहीं रह गया, फिर वो चैट GPT के कंट्रोल में चली गई. So as I said, you need to drive AI. You should not be driven by AI. यानी कि AI आपको चलाना शुरू कर देता है. So आइडिया क्या है, यहाँ से शुरू होती है कहानी. अगर आइडिया सही है तो फिल्म बन सकती है. और आइडिया का कंट्रोल पूरा होना चाहिए. आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये इस तरह स्टोरी है. जब तक पता नहीं है तब तक प्रॉम्प्ट लिखने पे ना जाए. So that paper work, paper pencil,
दैट विल रिमेन रेलिवेंट. खैर पेपर पेंसिल की जगह आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, नोट बट यू नीड टू जनरेट एन आइडिया फर्स्ट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन AI. और जब आप आइडिया जनरेट कर लें उसके बाद आप ये देखें कि आपकी आउटपुट क्या है. फॉर एग्जांपल आपकी आउटपुट बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक शॉट्स की है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्रेम्स हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गो ऑन मिड जर्नी. इट गिव्स यू मोर कंट्रोल. But if your story is all about small frames, not larger than life images, not very cinematic, not panoramic or anamorphic images you require, then you should definitely go on Leonardo. Leonardo gives you a very amazing textured faces. वो skin की tone, texture सब मज़ेदार आता है. Mid journey पे आपको ये सब control करना पड़ता है. You need to go and create something as you want. दोनों बेहतर हैं. तो मिड जर्नी पे आपने स्टोरी बनाई, फ्लो बनाया, सीन्स बनाए, ये सब आप अगर मैनुअल कर लें तो उसके बाद इमेज जनरेट करना सही होता है फिर. और उसके बाद जो ज़रूरी तरीन चीज़ है वो उसको इमेज को एनिमेट कैसे करना है. एनिमेट आप क्लिंग पे कर लें या रनवे पे कर लें. दीज टू आर द ईजीएस्ट एज ऑफ नाउ. उसके बाद उसमें ऑडियो, तो क्लिंग में ऑप्शन आ गया है ऑडियो ऐड करने का. उसमें भी ऑप्शन आ गया है, रनवे में भी. रनवे का एक फ़ीचर बहुत अच्छा है, Act 1, जिसमें अगर मैं और आप बात कर रहे हैं और ये सीन है तो मैं 2 आवाज़ें अलग से डब करवा सकता हूँ सेम फ्रेम में. 2 लोग अलग अलग आवाज़ों में बात कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली पॉसिबल ऑन रनवे एज ऑफ नाउ. एंड क्लिंग के ऊपर ये कि मैं कोई भी ऑडियो दूंगा तो एक करेक्टर बोल सकता है. आई नीड टू असाइन अ करेक्टर. बट ज़्यादातर क्लिंग के ऊपर जितनी भी ऑडियो जनरेशन प्लेस होती है वो एक करेक्टर एट अ टाइम पे होती है. तो वो थोड़ा सा लिमिट करता है आपको. रनवे पे आप एक हमने 2 करेक्टर से बात करवा सकते हैं, यानी कि मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये रनवे पे ये जनरेट भी हो सकता है और इस तरह बात भी करते हुए दिखा सकता है रनवे. कि मैं जब बोलूँगा मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे. सो दैट फीचर इज़ कॉल्ड Act 1. अभी रनवे ML4 जो आया है Gen 4, दैट इज़ अमेजिंग. मिड जर्नी का जो V7 आया, दैट इज़ अमेजिंग. वो आपकी चॉइस को पर्सनलाइज कर देता है. उसने आपसे पूरा डाटा ले लिया है कि आपको किस तरह के विजुअल पसंद है और वो उसकी बेसिस पे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. यू टर्न इट ऑन, देन वेन एवर यू राइट अ प्रॉम्प्ट इट विल जनरेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म. और आप उसे ऑफ करें तो फिर वो अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म बनना शुरू होता है. ओके. अगर प्रॉम्प्ट सीखना है कैसे, तो प्रॉम्प्ट हीरो के नाम से एक वेबसाइट है, आप जाएं उधर और अपनी लिखें जो भी सिनेरियो आपको चाहिए, उसके प्रॉम्प्ट के एग्जांपल्स मिल जाती हैं वहाँ पे. आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं. एंड इन दी एंड म्यूज़िक जो है, आई यूज़ Pixabay ऑन प्रोजेक्ट्स जो फ्री सोर्स है. उसके अलावा यूट्यूब लाइब्रेरी है और बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जहाँ से आप ले सकते हैं. इट्स अप टू यू कंफर्ट लेवल का है. और मैं एडिट जो है वो CapCut या समटाइम्स मैं iMovie पे भी एडिट कर लेता हूँ. आई एम वेरी क्विक विद बोथ. और मैं जिस तरह की इमेज जनरेट करता हूँ तो मैं कलर टोन का ख्याल रखता हूँ कि अगर मुझे एक सीरीज़ ऑफ इमेजेस जनरेट करने हैं तो मैं एक ही टोन के सारे इमेजेस जनरेट करता हूँ. तो मुझे पोस्ट में टाइम बचता है मेरा. Where do you see AI filmmaking in like next 3 years? तो बहुत ज़्यादा होंगे आई थिंक, बिकॉज जिस तरह से AI इवॉल्व हो रहा है. सो डू यू थिंक कि ये एक नया जॉनरा ऐड हो जाएगा? फ्यूचर को आप अगर पास्ट की बेसिस पे एनालाइज करना शुरू करेंगे तो वो गलत होगा. फ्यूचर को फ्यूचर की तरह एनालाइज करें. सो लेट्स सी कि वेयर AI विल टेक दिस अप. जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है उसमें मुझे लगता है कि जॉनरा तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि a massive disruption will happen. ड्यून सीरीज़ की जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में जो उनकी आंखें ब्लू होती हैं उसको उन्होंने CG पे किया था. लेकिन जब पार्ट 2 आया तो उन्होंने उसके लिए एक AI सॉफ्टवेयर या API क्रिएट की. तो वो जो आंखें लाल नीली हुई हैं उसकी सेकंड पार्ट में, वो एक बेसिक क्लिक से हुई हैं. सो AI विल चेंज द वर्क फ्लोज डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर. इन लेटर फ्यूचर हो सकता है वो इमेज भी बहुत अच्छे बनाना शुरू कर दे और हो सकता है कुछ अरसे बाद पूरी फिल्म भी बना दे और आपको ये महंगे एक्टर्स की सिर्फ शक्लें यूज़ करने के पैसे देना. आई थिंक एड्स और शॉर्ट फिल्म्स अभी भी बन रही हैं. एड्स शुरू हो गए अगेन. शुरू हो गए अपने एज आई सेड कि अगर पाकिस्तान के कंपैरिजन से कुछ भी सोचेंगे तो हर चीज़ वाव है. इट्स नॉट वाव. वॉट एवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान इट्स नॉट वाव. जिस तरह के चीज़ लोग पोस्ट कर रहे हैं उस तरह का काम मैं डेली बेसिस पे जनरेट करता हूँ, बट आई डोंट पोस्ट. मसला ये है कि यू नीड टू कम्पीट विद द बेटर. तो यू नीड टू फाइट विद द पीपल
दोज यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ विनिंग विद. नहीं जीत सकता मैं इससे, अब करूँगा काम. सो अपने आप को जब तक आप मुश्किल में नहीं डालेंगे तब तक आप लिमिटेड तरीके से सोचेंगे, लिमिटेड काम करेंगे और लिमिटेड अप्रोच रहेगी. मुझे ये लगता है कि फिल्म मेकिंग वुड बी मच ईजियर विद द हेल्प ऑफ AI. ad making would be way easier with the help of AI. And the only glitch is the acceptance. बहुत जो बड़ी organizations हैं वो AI को उस तरह accept नहीं कर रही. The amount of work that is being produced in the world right now under AI, that is very phenomenal. And not many people are exploring that. सिर्फ रनवे पे आप सस्ती सी सब्सक्रिप्शन लें या बगैर सब्सक्रिप्शन के भी जाएँ तो रनवे वॉच एक है, आप वो देखना शुरू करें तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा कि दुनिया किस तरह का काम कर रही है. आप क्लिंग पे जाएं और उसके सिर्फ जो लोग अपना काम उस पर अपलोड करते हैं वो देखें. यू फील डिप्रेस्ड बिकॉज यू कैन नॉट प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ वर्क बिकॉज आप सोचते ही नहीं हैं. मसला है सोचने का. सो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन समअप करते हैं. थैंक यू सो मच मिस्टर ब्रार फॉर टेकिंग अस टाइम फॉर जस्ट AI. इट्स बीन प्लेजर टू हैव यू विद अस. Any day. Alright, thank you so much. Okay, thank you so much guys. See you in next episode of Just AI Talks.